Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Lecture number 4, class number 4, subject science, chapter number 5 and lecture number 3. Today we will continue from the same page where we left in our previous lecture, and first we will do our check your progress. Okay, so you have to do in the book with the pencil. Question number 1, the pine and the deodar are dash trees. That means what kind of pine and deodar trees are. Pine और deodar कौन से टाइप्स के ट्रीज होते हैं, दैट इज कॉनिफेरस ट्री. Second question, Gulmohar and people are dash trees. That means Gulmohar and people are example of what kind of trees. Gulmohar और people कौन से तरह के प्लांट के एग्जाम्पल हैं, that is deciduous. And third is banyan and the rubber plant are dash trees. That means rubber plant and the banyan plant are the example of evergreen tree. banyan और rubber evergreen tree के क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स इन एरिया सर्वाइव. कैसे रेगिस्तान में प्लांट सर्वाइव करते हैं, उन्होंने अपने अंदर क्या ऐसे कैरेक्टर्स एडेप्ट किए हैं जिस वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं. ओके. Desert have extreme climate with very little rainfall. The days are generally very hot while at night it becomes quite cold. Only a few types of plant can survive in such hot and dry conditions. Cactus, babool and date palm are commonly found in hot desert. That means, as you know very well, that the climate of the desert is very hot, extreme hot. Extreme means too much, बहुत ज़्यादा. It's very hot with a very little rainfall, means there is almost no rainfall, or means very little rainfall occurs annually every year in the desert. Okay. And desert having two type of phase. That means in the day it is very hot, that means too hot, but in the night it is as much as cold. Okay. डेजर्ट में क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी क्या होती है, बहुत ना के बराबर. पूरे साल में बहुत कम क्या होती है वहाँ पे बारिश होती है. और डेजर्ट में क्या होता है, दो टाइप्स के आपको क्लाइमेट नज़र आएंगे. जैसे दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है सन की वजह से, और रात में उतना ही क्या होता है, ठंडा, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. तो डेजर्ट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है. बहुत कम प्लांट ऐसे हैं जो डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं. कैरेक्टर फाउंड इन दी प्लांट्स प्रेजेंट इन दी डेजर्ट. डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के क्या एडेप्टेशन है, देखते हैं. Since tree lose lots of water through small opening on the leaf surface, desert plants have very few or no leaves. As you know very well, the plant also lost their water in the form of transpiration, in the form of water vapor, and that process is known as transpiration. Okay, through this small opening, that opening is known as stomata, which is present in the on the leaves. Okay, so the adaptation to minimize the loss of the water through the leaves converted into spines, or there is no or very few leaves present on the plant. Okay, जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स भी अपने अंदर से पत्तियों के हेल्प से, लीव्स की हेल्प से क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं वाटर वेपर फॉर्म में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. पानी का प्लांट में से बाहर निकलना किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर के फॉर्म में. और वो ट्रांसपिरेशन किससे होता है, लीव्स के थ्रू होता है. और लीव्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. ओके, स्टोमेटा कहते हैं. इट्स
इस पानी की कमी को या इस पानी को प्लांट के अंदर से बाहर निकलने के लिए, रोकने के लिए वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स ही नहीं होती, और होगी तो भी बहुत ना के बराबर, और लीव्स ही नहीं होगी तो पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके। सेकेंड, द लीव्स ऑफ द कैक्टाई आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर। द स्पाइन ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय डेजर्ट। There is a very few leaves on the plants, but that leaves converted or modified into spines. Spines means कांटे. Okay. So minimum to minimum water can be loosed through the plant. Okay. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो किस में चेंज हो जाती है, सारी स्पाइंस में, मतलब कांटों में चेंज हो जाती है, ताकि उनमें से कम पानी बाहर निकल सके। क्लियर। ओके। और स्पाइन होगा तो प्लांट्स को एनिमल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि स्पाइन क्या होता है, कांटे, और कांटे मुंह में जाके चुभते हैं। तो एनिमल्स से भी बचने के लिए प्लांट्स अपने अंदर ये कैरेक्टर डेवलप करते हैं कि उनकी लीव्स किस में चेंज हो जाती है, स्पाइंस में, कांटों में। ओके। द स्टेम्स ऑफ कैक्टाई आर यूजुअली थिक, ग्रीन एंड फ्लैशी. They store water and also help in making food for the plant. Okay. As you know that if you have, when you see the tree, you see the stem, the main stem, that is trunk. The trunk of the tree or the stem of the tree is woody and brown color. But the stem of the desert plant, the stem, this green color, you can see this is the stem. ओके जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो क्या है, स्टेम. सो द स्टेम ऑफ द कैक्टस प्लांट इज green, thick and fleshy. Okay. So it can also store water and it also help in photosynthesis process, that means to make the food. जो आपने यूजुअली जो ट्रीज़ देखे, जो आप अपने घर के बाहर या स्कूल के बाहर ट्री देखते हैं, आप देखना उसकी जो स्टेम होती है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं, ट्री की स्टेम को, वो क्या होती है, वुडी होती है, मतलब पूरी लकड़ी जैसी होती है, उसका कलर भी ब्राउन होता है. लेकिन ओके ये इनके अंदर एडेप्टेशन है, क्योंकि लीव्स तो कांटों में चेंज हो गई तो वो पानी कैसे स्टोर करेगी, इस वजह से स्टेम क्या करती है, पानी स्टोर करती है और प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करती है या पार्ट लेती है. क्लियर. ये जो ग्रीन कलर पार्ट दिख रहा है वो क्या होता है, ग्रीन स्टेम होती है. क्लियर. फ्लैशी मीन्स भरा हुआ, गुदगुदा एकदम. Next, the root of the desert plants are thin and long. They spread close to the surface so that plant can quickly absorb even a few drops of rain. The roots of some desert plant go deep into water in search of water. Okay. In some plant, the roots are at the ground level, so it can absorb the rainwater as soon as the water falls on the land. And the roots of the some plant is go very deep into the ground, so it can absorb the water from the deep ground. Okay. कुछ प्लांट्स की रूट्स जो आप देखेंगे, इसमें देखेंगे आप कैक्टस की रूट, वो क्या होती है, कुछ प्लांट्स की रूट क्या होती है, ज़्यादा ज़मीन में गहरी नहीं जाती, वो ज़मीन के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होती है, ताकि जैसे ही बारिश या पानी ज़मीन पे गिरे वो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर ले. लेकिन कुछ प्लांट्स की रूट्स क्या होती है, बहुत ही गहरे ज़मीन में चली जाती है, ताकि बहुत डेजर्ट है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा नीचे होगा ज़मीन में. ओके. तो ताकि उस पानी को क्या कर सके, प्लांट के लिए एब्जॉर्ब कर सके. क्लियर. तो 4 हमने क्या पढ़े इसमें, एडेप्टेशन कि इनकी लीव्स नहीं होती. सेकेंड, खाना बनाने में हेल्प करती है. और 4th, उनकी रूट्स या तो ज़मीन के जस्ट नीचे होगी या ज़मीन के एकदम गहराई में जाएगी, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके. क्लियर. नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑन दी कॉस्ट. प्लांट ऑन दी कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स नियर दी
ओशन नियर द ओशन एरिया दैट इज़ नोन एज कोस्ट। समुद्र के पास वाला जो एरिया होता है, ज़मीन वाला एरिया, उसको हम कहते हैं कोस्ट। ओके, प्लांट ग्रोइंग इन कोस्टल एरिया हैव टू अडेप्ट दिस टू सैंडी सॉइल, salty water, strong winds, hot and humid climate along with the high rainfall. The coconut palm grow abundantly in this habitat. Okay, the area which is the land which is present near the oceans area, the soil present in it is very sandy. Okay, salty water, obviously the water of the ocean is too salty. Strong winds, that means strong movement of air. Hot and the humid climate, that means full of moisture and hot also, and very high rainfall occur throughout the year. Okay, example, the plant which grow on the coast is mostly coconut tree. जो समुद्र के आसपास वाला एरिया होता है, ज़मीन होती है, वहाँ का कैसा माहौल होता है, मौसम कैसा होता है, सैंडी सॉइल होती है। जो सॉइल होती है वो बहुत ही मतलब वाटर बहुत कम क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। सॉल्टी वाटर होता है, समुद्र का पानी तो खारा ही होता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट मतलब गर्मी होती है, ह्यूमिड मतलब नमी। जब ज़्यादा नमी होती है हवा में तब भी हमें क्या लगती है, गर्मी। जैसे अभी का जो मौसम है, ना तो बारिश है ना गर्मी है, मतलब नमी है। क्लियर। और एग्जाम्पल क्या है ऐसे प्लांट जो ऐसे कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं, कोकोनट ट्री। ओके, नाउ लेट्स सी द एडेप्टेशन ऑफ द कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री के क्या एडेप्टेशन देखेंगे हम। द ट्रंक ऑफ द ट्री इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड येट फ्लेक्सिबल टू विथस्टैंड थ्रू द विंड। ओके, द स्टेम ऑफ द ट्री दैट इज नोन एज ट्रंक इज स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबल, सो इट कैन easily bend with the स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, जो ट्रंक होती है, जो स्टेम, जो प्लांट की आपको जो पिक्चर्स में दिख रही है, जो स्टेम होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब आसानी से टूटती नहीं है। साथ में क्या होती है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो आसानी से मुड़ जाता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, ताकि हवा की वजह से टूटे भी नहीं। और फ्लेक्सिबल इस वजह से होती है ताकि जिस साइड हवा का फ्लो होगा उसी साइड उसके साथ मुड़ सके, क्योंकि अगर हवा के फ्लो के अगेंस्ट में जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्लियर। तो स्टेम होती है स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, द लीव्स आर थिक एंड वाटर प्रूफ, दे आर कट इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स टू विथस्टैंड थ्रू स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, नाउ यू कैन सी the leaves, you can see they have lots of cut, they are cutted into the thin strips। जो कोकोनट लीव्स, प्लांट की जो लीव्स है वो आप देखेंगे कि पतली पतली धारियों में कट चुकी है ऐसे। ये इनका क्या होता है, एडेप्टेशन, दैट ये पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइडेड हो जाती है ताकि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स या स्ट्रॉन्ग जो हवा आ सके उसके साथ क्या करनी हो, टूट के गिर नहीं जाए। ओके, और ये लीव्स जो होती है third one, the long roots spread go deep into sandy soil to anchor the tree firmly। Okay, so the roots of this plant, the roots of this tree, it's go too deep into the ground so it can give support to the plant or tree। इसकी जो roots होती है वो ज़मीन में बहुत गहरी जाके फैल जाती है ताकि प्लांट को या ट्री को क्या कर सके, खड़े रहने में सपोर्ट कर सके। और जैसे ही ज़्यादा तेज़ हवा वगैरह चलेगी तो ट्री क्या होगा, अगर सपोर्ट सही अच्छा या प्रॉपरली नहीं होगा या स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो आसानी से टूट के गिर सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द कोकोनट फ्रूट इज फाइब्रस, इट कैन फ्लोट ऑन सी वाटर एंड ट्रैवल अलॉन्ग डिस्टेंस, अपॉन रीचिंग लैंड इट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट, the fruit of this tree is fibrous, that means it is full of fiber। फाइबर इज़ द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर क्या होते हैं, पतले पतले लंबे बालों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनका जो फ्रूट होता है वो पूरा क्या होता है, फाइब्रस होता है, ताकि ये पानी में आसानी से फ्लोट कर सके और एक जगह से दूसरी जगह जाके ग्रो कर सके। ओके,
सो दिस वर दी एडेप्टेशन इन द कोकोनट प्लांट। ये क्या थे, सारे कोकोनट प्लांट के एडेप्टेशन थे कि वो कोस्टल एरिया में, ऐसी पानी वाली एरिया में कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम एंड द होमवर्क वर्ड मीनिंग इज, फर्स्ट इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स अधिकतम मात्रा, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा। डेट पाम मीन्स खजूर। फ्लैशी मीन्स मोटा। ह्यूमिड मीन्स नम और नमी। एबिडेंटली मीन्स बहुत ज़्यादा। एंकर मीन्स progress in the book with the pencil. Click the picture, send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको वर्ड मीनिंग रफ नोटबुक में करनी है और चेक योर प्रोग्रेस बुक में पेंसिल से लिख के स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे रात को 9 बजे से पहले ये सेंड करना है। ओके, थैंक यू। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।